Yes, to start the revision of chapter number 7, that is directing, who will tell me the meaning of directing? First of all, meaning of directing. Yes, Divyanshi. So directing refers to inspiring, communicating and guiding people to work in a particular way so that objectives of the organizations can be achieved. Yes, it is the process of, we can say, supervising them, motivating them, communicating them, and leading them with an example so that our objectives, which objective? Mainly business objectives can be achieved. ठीक, मोटा मोटा जो है इसको हम पढ़ेंगे. It is also known as, directing is also known as, directing is also known as, Gurleen, Actuation. actuation. And one more, Divyanshi. So management in action. Arlene, The management in action. management in action. Yes, directing is also known as actuation and management in action. Next, any one feature of directing. Any one feature of directing. Vasundhara. All pervasive. It is all pervasive. Yes, directing is required everywhere. Explain तो कर ही लोगे, same points ये सारे जो हैं. सिर्फ वो मैनेजमेंट या प्लानिंग या कंट्रोलिंग वर्ड काट के या फिर डायरेक्टिंग वर्ड लेना. आई होप कि आपने रिवाइज किया हुआ है और आप पढ़ के आंसर नहीं दे रहे हो, है ना? ठीक है. नेक्स्ट, वन मोर फीचर, तनवीर. Sir, directing is a continuous process. It goes on continuously, and as a superior gives on instruction to its subordinate continuously to achieve the organizational goals. Yes, it is a continuous process, means never-ending process. Continuously in the business organization, nothing function is performed. Every time superior is supervising the employees, his subordinates. Every time he is motivating them. Every time he is communicating with them. Okay? One more, Kanika. It flow from top to bottom. It flows from top to bottom. Yes. जो दूसरे फीचर्स है ना, कंटिन्यूस हो गया या अपना ऑल परवेसिव हो गया, ये फीचर सब में कॉमन है ना. ये फंक्शन जो ये फीचर है, दिस फीचर इज कैन से पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डायरेक्टिंग फंक्शन. जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो सीईओ है वो डायरेक्शन देगा डिपार्टमेंटल हेड को, जो डिपार्टमेंटल हेड है वो डायरेक्शन देगा मैनेजर को, मैनेजर्स को सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन टू वर्कर्स. ठीक है. इट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एक और बता दीजिए हर्षा. It initiates action. इट इनिशिएट्स एक्शन. इससे पहले जो जितने भी फंक्शंस थे वहां पे एक्शन नहीं हुआ था, है ना, वहां पे काम नहीं स्टार्ट हुआ था. ऑल दीज फंक्शंस वर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग वर प्रेपरेटरी फंक्शंस. यहाँ पे आके जो है एम्प्लॉइज या मैनेजमेंट या जितने भी मैनेजर्स वगैरह सारे जो है वो एक्शन में आ रहे हैं. यहाँ पे कंक्रीट काम जो है बिजनेस में वो स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक. दिस वाज अबाउट द फीचर्स. नेक्स्ट इज नेम द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. Name the elements of directing. For supervision, communication, motivation, and leadership. Supervision, leadership, motivation, and communication. These are Communication. yes, they are the elements of directing. और हमने हर एलिमेंट को एज अ सेपरेट टॉपिक पे पढ़ा हुआ है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सुपरविजन. व्हाट इज सुपरविजन? Supervision is made from two words. One is super and one is vision. Super means best. Vision means seeing. है ना? किसी एम्प्लॉय को काम करते हुए उसको देखना, that is the best. उसको बेस्ट तरीके से देखना, that is supervision, because that is the only way
दैट इज द बेस्ट वे बाय विच द एम्प्लॉइज कैन बी चेक। जब वो काम कर रहा है, बजाय कि जब वो काम कर ले उसके बाद उसकी मिस्टेक्स निकालना, वो भी ठीक है कि बताना आपने ये ठीक नहीं किया या कैसे किया, बट जब वो काम कर रहा है उस टाइम उसको चेक करना और रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचा लेना। एंड एम्प्लॉइज आल्सो विल फील, उसका हाई मोरल हो जाएगा कि जो मेरा सुपीरियर है वो मेरा काम देख रहा है। ठीक है, कौन बताएगा मीनिंग सुपरविजन का? और कोई मीनिंग ऑफ सुपरविजन? वसुंधरा? is guiding and giving instructions to the subordinates so as to ensure that they are working according to the plans. That can be leadership also, that can be motivation also. आपने कहा गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द कैंडिडेट और एम्प्लॉई सो दैट कि वो अपना काम ठीक करे, है ना। यहाँ पे एक आपने लाइन छोड़ी है, एक वर्ड छोड़ा है फ्रेज एक बीच में से, कौन वो ऐड कर सकता है? कनिका, कैन यू ऐड? सर वर्ड नहीं पता, मैं अपनी डेफिनेशन पूछ सकती हूँ। बता दीजिए। It refers to the monitoring the routine work of an individual so that he can do the work in the efficient manner and achieve their goals. वही बताया आपने, मेरे को वर्ड, एक तो वर्ड्स है वो मेरे को और चाहिए, सेम आपने बोल दिया है। आपने यही बोला है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लेना। इट इज चेकिंग द एम्प्लॉइज, गाइडिंग द एम्प्लॉइज, है ना, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यही बोला है आपने, है ना, वादा करते करके यही यही बोला हुआ ना। एक मेरे को 2-3 वर्ड्स बीच में एक फ्रेज सी मेरे को और चाहिए, क्योंकि सुपरविजन तभी होती है, अदरवाइज तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद चल गया है। दुश्मन? Supervision is the measuring and checking the performance of the employees in the business organization. मेरे को Checking their performance. मैं पूछ रहा हूँ जितना मैंने, आप भी डेफिनेशन नहीं बना दोगे, लेकिन जो मतलब जो ये बाकी बच्चे नहीं बता पाए हैं, इसमें मैं वो पूछ रहा हूँ, वो चीज़ बताइए, वो क्या नहीं बता पाए। जो उसने बताया वो दूसरे बच्चे ने बता दिया, दूसरे ने बताया, तीसरा वही बताएगा। मेरे को वो चीज़ बताइए जो ये मिस कर गए हैं इस लोग। दुश्मन, कैन यू टेल? So इन्होंने क्या मिस किया है? अगर वो होगा तभी तो जो मैं पूछ रहा हूँ तभी उसका आंसर आएगा। मैं आपको डिफाइन करने को दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ उसका मीनिंग आ गया मेरे पास। मेरे को 2-3 वर्ड्स चाहिए। दिलप्रीत? They're observing the employees while they are doing their work. Yes, when they are doing the job। ये आपने, मेरे को लगता नहीं कि आपने किसी ने बोला। बिस्मन ऐसे ऐसे नाके समूह बना के ऐसे करके बात नहीं बननी, ये वर्ड लिखना पड़ना बेटा बीच में। नहीं सर, वो हैंड नीचे नहीं हो रहा था। ऐसे कह सकते नहीं सर, नहीं पैडी बना रहे ऐसे कर, क्या ये क्या बात है? यही तो बात है। नहीं सर। चलो, ये यही मैं ढूंढ रहा था। सुपरविजन इज guiding the employees, instructing the employees when they are doing the work and they are doing the job। सुपरविजन बाद में सुपरविजन नहीं होती, बाद में सुपरविजन की सुपरविजन नहीं है। सुपरविजन जब एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी उसी वक्त उसको बोलना कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये काम ऐसे मत करो, ये काम ऐसे करो। उसको मोटिवेट भी करना, उसको गाइड भी करना, है ना। उसको तब उसको उससे बात करनी, तब उससे काम निकलवाना जब वो काम कर रहा है, वो सुपरविजन है। जो बाद में है वो सुपरविजन नहीं है। समझ आ रही बात? ये बात आपने जरूर लिखनी है, व्हाइल दे आर डूइंग द जॉब, है ना। वो चाहे आप ऐसे इलाका करके लिखो, चाहे आप मुंह बना के लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखनी तो पड़नी है उससे। उससे ही बात बननी है बिस्मल, ठीक है। गुड दिलप्रीत, ठीक है आपका आंसर। बाकी इसके बाद आप जो भी बीच में ऐड कर रहे हो वो करना ही है आपने, लेकिन ये जो 2-3 वर्ड जरूर आने चाहिए, है ना। चलो, लीडरशिप का मीनिंग बता दीजिए कोई। लीडरशिप क्या होती है, इसका मीनिंग? लीडरशिप
बताइए दिव्यांशी। So leadership means setting an example in front of the employees so that they can work enthusiastically to achieve the objective. यस, सेटिंग एन एग्जांपल बिफोर अदर्स, कि जो लीडर कह रहा है वो खुद भी करे और करके दिखाए सो दैट कि अदर्स कैन फॉलो हिम। उसके आगे उसके उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देना बाय सेटिंग एन एग्जांपल। कई बार मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ये कि लीडर कहे कि ये कर दो, बिना सोचे समझे जो डिसाइपल है या जो फॉलोअर है बोले कि हाँ जी कर दिया। उसके बाद जो उसने फॉलोअर है उसने ये नहीं देखना कि वो काम सही है या वो काम गलत है, वो है लीडरशिप क्वालिटीज। अब ये लीडरशिप क्वालिटीज जो दैट दोज क्वालिटीज कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन आल्सो, कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन आल्सो, वो भी लीडरशिप ही है ना? मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ तो जो उसामा बिन लादेन की, अगर आपने सुना होगा, आपने नाम उसका, कौन सा नाम, उसामा बिन लादेन सुना होगा? उसने क्या किया था? यू कैन टेल, क्या किया था उसने? आपको पता है तो आप कोई ऐसे करे और कोई ऐसे ऐसे करता रहे तो, लेकिन जब तक बताओगे नहीं तब तक उसका आंसर मेरे पास आ नहीं पाएगा। उसामा बिन लादेन ने क्या किया था? किसी को नहीं पता। हो सकता है आपके पैदा होने से पहले उसने कर दिया हो, लेकिन आपके पैदा होने से पहले बहुत कुछ ऐसा हो जो आपको पता है ना? इंडिया भी आजाद आपके पैदा होने से पहले आपको पता है कि आजाद हो गया। रणवीर। Sir, he spread terrorism all around the world by misinterpreting the teaching of religious books. वेरी गुड। उसने किया क्या? बिल्कुल ठीक है, आपने टेररिस्ट एंड स्प्रेड द टेररिज्म इन होल ऑफ द वर्ल्ड। उसने किया क्या था? किसी खास डेट को उसने, आई थिंक वो सितंबर की थी 11th, अभी लास्ट मंथ 9/11 9/11 ना, 11th ऑफ सितंबर की। क्या किया था दिलप्रीत? उसने क्या किया था? सर यूनाइटेड स्टेट्स में सर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, शायद हाँ। पेंटागन में, शायद पता नहीं ऐसा कुछ। हाँ, काफी आसपास पहुंच गए, चलो यूएसए तो पहुंच ही गए, अभी टावर तक नहीं पहुंचे। वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर थे, ट्विन टावर्स, है ना? ऐसे बने हुए थे, ट्विन टावर्स होते, शायद इसमें से वो डैश भी थे, हो सकता है, मेरे को याद नहीं। और वर्ल्ड का मैक्सिमम जो ट्रेड है वहां पर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलते थे उसको। उसने 2 प्लेन हाईजैक करवा के किसी से, यूट्यूब पे देखना वीडियो वाला, प्लेन उसने हाईजैक करवा के बीच में से निकलवा दिए थे, ऐसे निकल गए थे प्लेन, बिल्डिंग के बीच में मार दिया था। एक प्लेन की तो वीडियो भी है यूट्यूब पर, उसने एक प्लेन ऐसे लिया, वो प्लेन बीच में जा रहा है, घुस रहा है और डिस्ट्रक्शन से हो रही है। ये लाइव है पड़ा हुआ यूट्यूब पे, लेकिन देखना सी, मतलब है तो एग्जांपल चलो नेगेटिव, बट सी द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन। अगर हम इसको बिजनेस साइड, अगर वो एक मतलब अच्छा पर्सन होता सपोज, तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है ना? वो किसी कोई मान लेते हैं कि कोई वो पैट्रियटिज्म में होता, या कहीं वो किसी स्पोर्ट्स में होता, या कहीं कुछ और होता। अगर वो उस बंदे में इतनी क्वालिटीज थी, अगर उसने उसको पॉजिटिव साइड लगाया होता तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। नहीं, उसने लगाया है नेगेटिव साइड, बट स्टिल लेट अस लीव दिस थिंग की पॉजिटिव नेगेटिव, सी द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन। उसने कैसे एग्जांपल सेट की होगी? एक पर्सन को किसी अच्छे काम के लिए मोटिवेट करना, उसके आगे एग्जांपल सेट करना, इट्स वेरी इजी। मैं आपको बोलूं बेटा नहीं पढ़ा करो, बेटा आप पढ़ोगे आप ये बन जाओगे, बेटा ये है, बेटा वो है, आपको पता है कि आपने पढ़ना है, आपके पेरेंट्स को बताया कि बच्चे को पढ़ाना भी, उसको घर में टोकना है, उसको बोलना है कि पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ क्यों ना, हर तरफ से, बिकॉज फायदे वाली बात हो रही है ना? उस पर्सन ने सी क्वालिटी उसकी, उस पर्सन ने कैसे किसी को मतलब इस बात के लिए मोटिवेट किया होगा कि आपने प्लेन पहले हाईजैक करना, उसके बाद लेके कहाँ जाना किसी और कंट्री में, और उसके बाद उसको बीच में घुसा देना है उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, आप देखो। और जो बंदे हैं उनको पता है कि वापस नहीं आ पाएंगे, वो पता है वापस थोड़ी आ पाएंगे। कैसे मोटिवेट किया होगा? जिसको वो जिहाद बोल देते हैं, हम कहते हैं ना वो शहीद हो गए ना, ऐसे वो भी अपने वर्ड्स में यही बोलते हैं। तो इस चीज के लिए मोटिवेट करना, उस बंदे की फैमिली भी होगी, उसके पेरेंट्स भी होंगे, उसको बोलना कोई गल नहीं, तू कर अपना काम, तेरी फैमिली को मैं देखूंगा, इतने इतने पैसे मैं दे दूंगा। अब वो बाद में नहीं भी देगा तो कौन पूछने वाला है? लेकिन इस बात के लिए उसको मोटिवेट करना, सी द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन, उसामा बिन लादेन।
आई एम नॉट सेइंग कि आप वो बन जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना, बट अब क्वालिटीज देखो उस बंदे की, किसी के आगे एग्जाम्पल सेट करना और उसको अपने जैसा बना लेना बाद में, लीडरशिप क्वालिटीज। ये तो मतलब अगर वो कहीं सही जगह पे होता या कहीं सही फील्ड में होता तो पता नहीं क्या कर जाता, इतनी उसमें बंदे में क्वालिटीज थी नहीं। तो लीडरशिप ये है कि बाय सेटिंग एन एग्जांपल दूसरे बंदे को अपने जैसा ही कर लेना, कि जो लीडर कह रहा है फॉलोअर वही करेगा, इन दिस वे उसके बिहेवियर को मोल्ड कर देना, दैट इज लीडरशिप, है ना। एग्जाम्पल जरूर रॉन्ग है हमारी, एग्जाम्पल जरूर नेगेटिव है, लेकिन अगर लीडरशिप को समझना हो तो मेरे को लगता नहीं कि इससे अच्छी एग्जाम्पल कोई और हो। किसी को गलत काम के लीड कर लेना कितना कितना डिफिकल्ट है वो ना, उसको ब्रेन वॉश करना नहीं। सो वी कांट गिव दिस एग्जांपल इन द बुक्स, बट एक उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम सोच सकते हैं कि ऐसे ये भी एक पर्सन था जो उसमें इतनी क्वालिटीज की लीडरशिप, बस उसने बंदे ही गलत चूज किए और गलत बंदों गलत साइड पे लगाया उसको, है ना। और अब कर सकते हैं इसमें दैट लीडरशिप स्टाइल्स, ये कौन बताएगा, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। और कोई? सर ऑटोक्रेटिक, एक फ्री रेन एंड हाँ जी, एक है ऑटोक्रेटिक, एक है सर सेकंड फ्री रेन। एक दूसरे वाला कौन सा है, इसको सीक्वेंस में लर्न करोगे ना, क्लियर करना नहीं इजी। फ्री रेन वाले को थर्ड पे रख लो तुम भी। सेकंड वाला कौन सा था? सर इट वाज लेस पार्टिसिपेटरी, डेमोक्रेटिक। और एक था आपका फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक कौन सा होता है? ऑटोक्रेटिक दिव्यांशी। So in which leader runs the whole organization, neglecting the efforts of the employees. जिसमें लीडर जो है वो अथॉरिटी होता है पूरी, नेवर लिसन्स टू द फॉलोअर्स सबऑर्डिनेट्स, मींस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देता है वो, है ना। इसको हम अगर डायनामिकली प्रेजेंट करेंगे तो ही इज द सुपीरियर लीडर, दे आर द सबऑर्डिनेट्स, subordinate 1, subordinate 2, subordinate 3, and see the flow of instructions or communication. We can't say instructions. Instruction can be flown downwards only. Flow of communication. It is in the form of downward, है ना? It is in the form of instructions, guidelines, orders. सर नीचे सुन नहीं रहा है किसी को, रिपोर्ट नहीं ले रहा है किसी से, किसी से सलाह मशवरा नहीं ले रहा है, वो अथॉरिटेटिव स्टाइल है। इसको इसीलिए ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेटिव स्टाइल ही बोल देते हैं, ये बोल देते बिकॉज जो यहाँ पे लीडर जो है ही हैज अ फुल अथॉरिटी एंड ही यूजेस दैट फुल अथॉरिटी, वो किसी से नहीं पूछता है। इट इज पर्टिकुलरली इन दैट केस व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर इलिटरेट। इलिटरेट डजंट मीन इलिटरेसी ओनली, इलिटरेट मीन्स कि दे डोंट नो अबाउट दैट प्रोजेक्ट। सपोज नया प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया है, उस केस में सबऑर्डिनेट पता ही कुछ नहीं है, पता ही सारा मैनेजर को लीडर को है, तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देगा, है ना, डिपेंड करता है। और द मेरिट ऑफ बिगेस्ट मेरिट ऑफ दिस मेथड इज दैट द लीडर इज एबल टू गेट द वर्क डन विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम फ्रेम। उसने बोल देना ये काम करो, यहाँ तक करके लेके आओ, बात खत्म, करके लेके आएंगे, क्योंकि वो किसी से पूछ ही नहीं रहा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और द डीमेरिट इज कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी अपना जो उनका इनिशिएटिव है वो खत्म हो जाता है, वो नहीं मतलब वो अगर वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहे, वो कोई प्लानिंग करना चाहे तो वो तो बातें नहीं सुनता, तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज जो है वो यस बॉस वाले एम्प्लॉयज बन जाते हैं। इट इज टोटली बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। जो सेकंड वन है दैट इज पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल, इसमें वो लीडर जो है वो अपनी बात भी कहता है एंड ही अलाउज द सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। सपोज ये आपके जो चार हैं वो सबऑर्डिनेट्स हैं, ये बैठा हुआ है लीडर, जो लीडर है वो बीच में है, सारे आपस में बात भी कर रहे हैं, लीडर के साथ बात भी कर रहे हैं, बट ही इज
allowing the subordinates to participate in the process. It is also known as democratic leadership style. इसमें वो दूसरे की भी सुनता है, democratic leadership style. ठीक है. Merit of this is that ये वर्कर्स को, वर्कर्स है मीन्स सबऑर्डिनेट्स, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका मोरल जो है वो हाई रहता है. And this type of leadership style can be followed in that case when employees they know something about the project. उनको पहले पता है कि बात हो क्या रही है, प्रोजेक्ट क्या है. अगर उनको बिल्कुल नहीं पता है तो जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल था वो था. अगर एम्प्लॉइज जो उनको पता है थोड़ा बहुत, हम उसकी आगे उनकी नॉलेज में इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल है वो बेटर है. एंड थर्ड वन इज फ्री रेंज स्टाइल. फ्री रेंज स्टाइल को हम लेजर स्फीयर स्टाइल बोलते हैं, LAISSEZFAIRE, लेजर स्फीयर. लेजर स्फीयर का वैसे मीनिंग होता है कि लेट देम डू. लेट देम डू मींस दे द सबऑर्डिनेट्स दे आर केप्ट फ्री कि वो जो डिसीजन लेना है वो अपने आप ले लेते हैं. जो लीडर होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता. अगर हम बात करें इसी की ही, इसको लीडर को यहाँ से हम निकाल दें अगर, और यहाँ बाहर बिठा दें, यहाँ से निकाल के मैंने सेंटर में था, अब उसको बाहर बिठा दें सपोज, उस केस में ये फ्री रेंज बन जाएगा. मीन्स लीडर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इवन इन द डिसीजन मेकिंग. ही हैज लेफ्ट ऑल द थिंग्स टू द सबऑर्डिनेट्स and subordinates have to decide what is to be done and what is not to be done. This type of style is possible. It is feasible when employees, subordinates, they are literate. Literate here means that they know everything about the job, what they have to do. उस केस में लीडर की जरूरत ही नहीं है, वहां पे अपने आप वो काम कर लेंगे. ठीक है. जिस मशीनरी पे सपोज वो काम कर रहे हैं, मशीनरी के लिए वो बड़े पहले फेमिलियर हैं, उनको पता है कि आप कैसे करना है, क्या करना है. लीडर की वहां जरूरत ही नहीं. लीडर सिर्फ बाहर बैठा हुआ कि इन केस पे प्रॉब्लम आई तो लीडर सॉल्व करते हैं. फ्री वाला मतलब लीडर इज फ्री हम कह सकते हैं, यहाँ से कुछ लेना है. ठीक है. ये मैंने ही दोबारा करवा दिया है आपको, अदरवाइज रिविजन हो रही थी, मैंने आपसे सुना था. मेरिट क्या है फ्री रेंज की, ये कौन बताएगा? मेरिट ऑफ फ्री रेंज. फ्री रेंज स्टाइल, इसकी मेरिट कनिका. Quick decision making. Quick decision making. Yes, leader is not involved in any decision, so decision making will be prompt. Demerit, Bisman. Bisman भाई, demerit क्या होता है? So, leaders are not provided. एक सेकेंड सर. कोई सोच ही रहे हो ना, देख तो नहीं रहे हो? एक मिनट सर, मैं बुक देख के बताती हूँ. सर मेरिट याद आया, सर डीमेरिट भूल गया. मिली नहीं डीमेरिट बुक में? कोई बात तो मेरिट तो वही. मेरिट बता दो, कोई बात नहीं, मेरिट बता दो, डीमेरिट बाद में. It enhances the satisfaction among the employees. Among the employees. Employee leader. Job satisfaction. Leader और subordinate दोनों में से किसी एम्प्लॉय की बात करें. Subordinates. It enhances the satisfaction among the subordinates. Subordinate word use करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, because leader himself is also an employee, है ना. हम subordinate word use करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अगर हम एम्प्लॉई वर्ड यूज कर देंगे तो लीडर भी तो एम्प्लॉई ही है, देखा जाए तो, है ना. ठीक है पॉइंट बेटा आपका. यदि एक डीमेरिट बता दो बच्चे, आपने डीमेरिट पे हाथ खड़ा किया. Sir, contribution of leader is ignored. कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर इज इग्नोर्ड. यस, लीडर जो है वो बेचारा टोटली बाहर बैठा, उससे पूछ ही नहीं रहा ना कोई, है ना. ठीक, बिल्कुल ठीक है बच्चे. तनवीर. Sir, once a leader delegates all his responsibility to the subordinates, so his responsibility is finished. So whatever the result of the work comes out, it is a responsibility
of the subordinates only, and the leader is not responsible for the outcome of the work. Actually ऐसा तो नहीं है कि leader is responsible for the outcome, because leader only has delegated the power to the subordinates. The accountability still lies with the leader, though he has transferred those authorities or delegated the authority to the subordinates कि अपने आप कर लो, but still the accountability lies with the leader only. इसको है ये डिमेरिटी, लेकिन आप इसको दूसरी साइड से लो. सपोज लीडर, जो लीडर है वो मान लीजिए मैनेजर की पोस्ट पे है, लीडर मैनेजर की पोस्ट पे है, जो ये सबऑर्डिनेट्स हैं मान लेते हैं सुपरवाइजर, इसके ऊपर कौन बैठा है? डिपार्टमेंटल हेड. नाउ थिंक अबाउट दैट, वो जो हम टॉपिक किया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. The authority which is given by the departmental head to the manager has delegated to his subordinates कि अपने आप कर लेना भाई, मेरे को मत पूछना, आपको पता है कैसे करना है. अगर सपोज इसकी जो अथॉरिटी मिसयूज हुई, या हम कह सकते हैं टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी स्टिल लीडर की है, मैनेजर की है. डिपार्टमेंटल हेड जो होगा वो सबऑर्डिनेट से पूछेगा, वो लीडर से पूछेगा, मैनेजर से. वो उसको पूछेगा भैया मैंने तेरे को बोला था तू काम कर क्यों ले गया है. मैनेजर कांट से कि सर सबऑर्डिनेट ने नहीं किया, है ना, सुपरवाइजर ने नहीं किया. अकाउंटेबिलिटी वर्ड यूज करना तनवीर, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. और अकाउंटेबिलिटी सेट करना मैनेजर की मीन्स लीडर की. ये लीडर पॉइंट ऑफ व्यू से डीमेरिट बन सकता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये. लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डीमेरिट बनाओ कि चाहे उसने आगे काम जो है वो डेलीगेट कर दिया है, बट स्टिल अकाउंटेबिलिटी चाहे उसकी है ना, वो फ्री होकर बैठ तो गया, लेकिन वो फ्री थोड़ी है. कल को उसका सीनियर पूछेगा मीन्स डिपार्टमेंटल हेड, तो फिर वो मतलब अकाउंटेबिलिटी उसी की रहेगी. ठीक है तनवीर, ठीक है बच्चे? Yes sir. एक हमने करना है एलिमेंट, एक और है मोटिवेशन. इसे कौन बताएगा? मोटिवेशन का मीनिंग दिव्यांशी. So motivation refers to a driving force that inspire a particular employee to act to do a particular work. Yes, it is a driving force which persuades the employee, which motivates the employee, which encourages the subordinate that वो उस काम को उस तरीके से करे जिस तरीके से उसके सीनियर ने बताया है. उसको हवा में रखना, उसको मोटिवेट करके रखना. हाँ जी, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन, ऐसे करते रहते हैं ना, है ना. क्रिकेट का मैच हो रहा हो, रात को देखा होगा आप, डेली अब तो मैच देख रहे हो आप, एम ताड़ियां मारते रहते हैं. उसने एक बड़ी खराब सी बॉल डाली, उसने शॉट इतनी अच्छी मारी, वो चौका छक्का भी लग गया, लेकिन क्रिकेट की वजह से वेरी गुड बाय बात ब्रेवो ब्रेवो करते रहते हैं. दिस इज मोटिवेशन. कुछ नहीं, जो होना था हो गया. उसको इंस्पायर करना, उसको मोटिवेट करना कि नहीं ठीक है, इसको मतलब उसको डांट के ठीक करवाने की बजाय उसको थोड़ा हवा में रख के ठीक करवाना, उसको मोटिवेटेड रखना, सो दैट द सबऑर्डिनेट कैन गिव हिज बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. काम भी तो लेना है ना उससे. उसको डिमोरलाइज कर देगा सीनियर, तो फिर तो वो बात ही नहीं बननी, वो टारगेट ही अचीव नहीं करवा पाएगा अपने एम्प्लॉइज. उसने काम भी नहीं करवाना है एम्प्लॉइज से, उसको मोटिवेटेड करना ही तभी होगा जब एम्प्लॉइज खुश होंगे, तो मोटिवेटेड होंगे. ठीक है. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ persuading the employees and encouraging them so that they can give their best to the organization. इसमें हमने एक मोटिवेशन का प्रोसेस भी किया था. इसमें फर्स्ट क्या था पॉइंट याद है? मोटिवेशन जो है प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? व्हेन डू वी फील मोटिवेटेड? Need felt. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फील द नीड. उस नीड को ध्यान में रखते हुए हम मोटिवेटेड फील करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अचीव दैट टारगेट, है ना. किसी एम्प्लॉय की जो नीड है वो स्टेटस हो सकती है, किसी एम्प्लॉय की नीड प्रमोशन हो सकती है, किसी एम्प्लॉय की नीड सैलरी हाइक हो सकती है, तो उसके हिसाब से काम करते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्या था इसके बाद मोटिवेशन प्रोसेस में? इसके बाद क्या था वसुंधरा? क्या था इसके बाद? टेंशन. यस. इसके बाद टेंशन थी. टेंशन के बाद ड्राइव वाज देयर.
कि वो वेरियस अल्टरनेटिव देखता है, कौन से अल्टरनेटिव में अपनी जो टेंशन है वो दूर कर सकता है। देन ही सर्चेस फॉर बिहेवियर, मीन ही सिलेक्ट्स द बिहेवियर, कौन सा उसने बिहेवियर जो करना है। देन नेक्स्ट वाज हिज सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, कि अब उसकी नीड, जब वो सर्च करता है बिहेवियर को, सेलेक्ट करता है बिहेवियर को, तो वो नीड उसकी सेटिस्फाई होती है। सपोज मेरे को प्यास लगी हुई हो, तो मेरी ड्राइव क्या होगी कि प्यास कैसे बुझ सकती है। प्यास पानी पीने से बुझ सकती है, प्यास सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बुझ सकती है, प्यास जूस पीने से बुझ सकती है। दीज आर द वेरियस अल्टरनेटिव्स। देन आई विल सर्च फॉर द बिहेवियर, मैं देखूंगा कि मेरे लिए सूटेबल कौन सा है ना। हो सकता है मेरे को मतलब पानी पीने की ज्यादा जो है वो लगी हुई हो, पानी से प्यास बुझ रही है, लेकिन वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, मान लेते वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक पानी नहीं सपोज अवेलेबल है, तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लूंगा एंड माई नीड विल बी सेटिस्फाइड, विच विल रिजल्ट इन व्हाट, Satisfaction. सेटिस्फेक्शन होगी, इट विल रिजल्ट इन Reduction of tension. Intention. tension will be reduced, and then a new need will arise and it will create again tension. So this process, जैसे हम कहते होते हैं, it is a continuous process. एक जो नीड है वो सेटिस्फाई होती है, उसके होने से पहले ही अगली नीड अराइज हो जाती है ना। हम जब लेक्चर ये वाला किया, टॉपिक किया, हम तब भी हम एग्जांपल ली थी कि छोटे होते एक छोटा सा साइकिल, इसके 4 टायर होते थे है ना, एक तो आगे वाला टायर, एक पीछे वाला ना, एक साथ में पीछे वाले में 2 सपोर्टिव टायर वाले जो आप गिरने नहीं देते थे ना, वही हमारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी कि यही मिल जाए तो बहुत है। नहीं, वो चलाना आया, उसकी टेंशन रिड्यूस हुई, तो हमने बड़ा साइकिल लेने की कोशिश करी विदाउट वो सपोर्टिव टायर्स। उसके बाद बड़ा साइकिल लिया तो एक्टिवा वगैरह पे आ गई, एक्टिवा चलानी सीख ली, वो खत्म हो गई चॉइस हमारी, टेंशन हमारी, तो हम बाइक पे आ गए, बाइक वालों ने कार चलानी सीख ली, कार के बाद क्या सीखना है पता नहीं कौन सी टेंशन है। मतलब एक टेंशन खत्म नहीं होती है, दूसरी टेंशन उसके खत्म होने से पहले ही जो है वो शुरू हो जाती है कि ये वाला काम हमने करना है। सो जो मोटिवेशन है, इट इज आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, एक लास्ट इसका एलिमेंट था कम्युनिकेशन, ये कौन बता सकता है? कम्युनिकेशन, वन ओनली, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। यस, बिस्मन इज इन फुल फॉर्म आज फुल फ्लो में है, बिस्मन का चौथा आंसर आया है। यस, बताओ बेटा। Communication is the exchange of ideas, suggestions among 2 or more people or the subordinates so as to develop a common understanding. यस, वेरी गुड। कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपने बोल दिया, मैं उसी की वेट कर रहा था, बिकॉज अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग वर्ड ना बोले ना, हमारी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी। It is a process of transferring the ideas, text, figures, emotions, feelings to the other party so that it can create common understanding. Now, what is the meaning of common understanding? Means in whatever way it has been told by the sender, it has been sent by the sender. Sender means the person who is communicating has been received by the receiver in the same way or not. If it has been received by the receiver in the same way, it means that the communication process is complete. अगर सेंडर कुछ और कह रहा है, रिसीवर कुछ और भेज रहा है, सुन रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो बात सिर्फ सुनी गई है, समझी नहीं गई है। अगर मैं कहूँ ये, हमने एग्जांपल ली थी ये वाली ना, ये क्या है? क्या है ये? हाँ? आपको देखो, आपको आंसर पता है, यू नो द आंसर है ना, मैंने क्या कहना है उसके, बिकॉज आपको कोई ऑप्शन नहीं दी। नहीं, यदि क्या है ये? सर वी। बी नहीं बेटा, ये 2 है, तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दी आपको, है ना। अगर आप 2 कहते, मैं कहता नहीं बेटा ये तो बी है। मीन्स इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर इन द सेम वे। तो यहाँ पे मेरा बनता था, मैं आपको बताता हूँ, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है ना। अगर सेंडर जो है वो क्या है कुछ हो रहा है, रिसीवर समझ कुछ हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि सेंडर के कहने से ही ऐसा हो रहा हो, क्या पता रिसीवर ने ध्यान रखिए। 2 बैरियर्स जो हम बात करते होते हैं, एनी बैरियर कैन बी देयर, है ना। तो कहा कुछ और, सुना कुछ और गया, समझा कुछ और गया, तो कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए ये फ्रेज बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मीन व्हाटएवर इज सेड बाय सेंडर हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो ये कम्युनिकेशन है। हमने एलिमेंट्स जो है वो कर लिए हैं। एलिमेंट्स की आगे जो है इसकी
जैसे मोटिवेशन में टॉपिक था मैस्लोज नीड हायरार्की, कम्युनिकेशन में है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह हो गई, फीचर्स वगैरह होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस जब बिजनेस का आएगा। ठीक है, चलो मीटिंग।